بہت زیادہ تباہی ہوتی ہے. تو جتنے بھی ہیومنس ہیں ان کو ایویکویٹ کر دیا جاتا ہے لانگ سائڈ سے, ایک خاص ایریا سے باہر لے جاتے ہیں. اور بنکر میں کچھ لوگ ہوتے ہیں جو یہ کمانڈ اور یہ آپریشن کر رہے ہوتے ہیں. اس کے بالکل لانچ وہیکل کی جو نیچے ہے وہاں پر پورا ایک ٹنل بنا ہوا ہے. اس طرح سے جب وہیکل فائر ہوگا, جب نائٹ ہوگا تو ہم دیکھیں گے کہ آپ اب راکٹ اسٹینڈنگ پر ہے اور لفٹ آف کے لیے تیار ہے. یہ سارے لانچ ٹاور کی ٹرین بھی آپ دیکھ سکتے ہیں, ساری میٹنگ ہو رہی ہے. نظر آ رہے ہیں اور یہ ہم بوسٹر اور فلائٹ کے اوپر پہنچ یہ سارے انجن ہیں جو اس پر برن کریں گے اور لاک ڈاؤن کی پریپریشن. جیسے کہ میں نے آپ سے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ ایک چند سیکنڈ کے بعد ہم راکٹ کو نہیں دیکھ سکیں گے کیونکہ راکٹ ہماری کیمرے کی رینج سے نکل جاتا ہے. تو اب یہ انہوں نے اس کی جو سیمولیشن ہے جو کمپیوٹر میں بنائی گئی ہے اس کو انہوں نے آن کر دیا. اب یہ سیمولیشن یہ ایگزیکٹلی ریپلیکیٹ کرے گی راکٹ کی موشنس کو. راکٹ جس طرح ٹلٹ ہو رہا ہے ان ایکچوئل یہ سیمولیشن وہی دکھا رہی ہے. تو اب اس وقت اس کی پہلے اور اس کے یہ چاروں پوسٹر یہ برن کر رہے ہیں اور نیچے یہ جو ایریا ہے شیشانگ کا, اس طرح جب ہم نے ٹریول کیا اسپیس کرافٹ کی کچھ ٹیسٹنگ تھی شیشانگ میں اس کے لیے, تو بالکل ایگزیکٹلی یہی ٹیرین تھی جو کہ نیچے ہمیں کیونکہ ڈے کا ٹریول تھا تو ہمیں نیچے نظر آ رہی تھی. تو یہ ساری ماؤنٹین کر رہی ہے اور یہ سیف فلائٹ پاس جو ہے وہ چیک کیا جاتا ہے. اب راکٹ جو ہے وہ آہستہ آہستہ اپنے یہ جو آپ کو شو کر رہے ہیں ان کے مختلف گراؤنڈ اسٹیشن ہیں نیچے چائنا کے اندر مختلف گراؤنڈ اسٹیشن ہیں. اور یہ جو لائٹ نظر آ رہی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت گراؤنڈ اسٹیشن سے راکٹ کو ٹریک کیا جا رہا ہے, اس کو دیکھا جا رہا ہے کہ وہ کس پاس پہ جا رہا ہے, اس کی ٹریجیکٹری ٹھیک ہے جس پہ ہم نے ڈیزائن کیا تھا اس کے مطابق ہے. یہ وہ کیمرہ ہے جو کہ لانچ وہیکل کے اوپر لگا ہوا ہے, یہ وہاں سے اس کی بھیڑ آ رہی ہے. جیسے ہی وہ ان کے گراؤنڈ اسٹیشن کے ساتھ لنک ہوا اس کی فیلڈ جو ہے وہ نیچے آئی اور وہ ہم تک پہنچ گئی. یہ وہ کیمرہ لانچ وہیکل کے اوپر ہے اور یہ برننگ آپ کو نیچے راکٹ بوسٹر کی اور فرسٹ اسٹیج کی جو برننگ ہے اس کو یہ کیپچر کر رہا ہے اور ہم اور یہ نیچے جو ہے وہ سیکنڈ چل رہی ہیں. اب یہ چائنا جو کہ بہت بڑی لینڈ ہے اور پاکستان یہ اور اس کے ساتھ ہی فرسٹ اسٹیج کی برننگ ختم اور فرسٹ اسٹیج ریموو. یہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ سیکنڈ اسٹیج آپ اپنا کام شروع کریں گے. فرسٹ اسٹیج کی ریموول کے بعد اب فیئرنگ کی باری ہے. اب یہ تقریباً جو ہے وہ 100 کلومیٹر جیسے 150 کلومیٹر کے اراؤنڈ پہنچے گا. اس کی فیئرنگ کے دونوں کور جو ہے ریموو کر دیے جائیں گے. ہو رہی ہے اور جتنے گراؤنڈ اسٹیشن ہیں مختلف گراؤنڈ اسٹیشن ہیں جس کی رینج میں وہیکل آئے گا. اس وقت 1
2 3 4 और 5 ग्राउंड स्टेशन की रेंज में आप इसे कम्युनिकेट कर रहे हैं। एक मास्टर होता है और बाकी सारे बैकअप के होते हैं। एक जगह से कमांड जाती है, बाकी या रिले करते हैं या बैकअप पर होते हैं। और इसी बात में जब सेटेलाइट आगे जाएगा, वापस आगे जाएगा, तो सी के ऊपर करेगा तो सी में बाकायदा इसके ट्रैक पाथ के ऊपर शिप्स जो है वो खड़े किए होते हैं जो कि इसकी ट्रैकिंग का काम कर रहे थे। और फिर आखिरी पॉइंट जो आपका इंजेक्शन होगी वहाँ पर भी शिप होगा, क्योंकि सी के ऊपर इंजेक्शन होती है वहाँ पर भी। और ये इंजेक्शन हम करेंगे 150 किलोमीटर के एल्टीट्यूड को क्रॉस कर चुका है। तो इस वक्त जो एयर का ड्रैग का इशू था वो खत्म हो चुका है। प्रैक्टिकली एयर नहीं है 150 किलोमीटर के ऊपर, तो इसलिए इसको रिमूव कर दिया ताकि व्हीकल लाइटवेट हो जाए और इसके प्रॉपर थ्रस्ट है वो ज़्यादा मिले। तो इस MM1 सैटेलाइट यहाँ पर इस वक्त इस जगह पर थर्ड स्टेज के साथ एक है। सेकंड स्टेज रिमूव होगी तो थर्ड स्टेज और MM1 जो है वो हमारे सामने आ जाएंगे। तो डीजे में इसी तरह ये देखने को मिल रहा है, ये जो नेविगेशन सैटेलाइट है लिंक है, क्योंकि इसके अंदर जो नेविगेशन सेंसर्स लगे हुए हैं वो ऑफकोर्स इससे ऊपर के एल्टीट्यूड पे उनके साथ लिंक है। तो उधर भी डाटा जा रहा है और नीचे ग्राउंड स्टेशन पर भी डाटा आ रहा है। ये आगे आप देख सकते हैं, ये सारे मुख्तलिफ स्टेशन हैं चाइना के अंदर। ये लॉन्च टाइम है और उसके बाद जो टाइम लैप्स कर चुका है ये वो बताने के 30 बज के चाइना के मुताबिक 8:12 से लॉन्च हुआ, उसके बाद इतना टाइम जो है गुजर चुका है। तो ये सारी चीजें मॉनिटर हो रही होती हैं, टाइम भी रिकॉर्ड देख रहे होते हैं कि जो टाइम हमने प्लान किया था, जिस मिशन डिजाइन किया था एग्जैक्टली उसी पैटर्न पे है, उसी टाइम पे है, उसी पाथ पे है। और ये सारा क्रिटिकली इसको मॉनिटर किया जा रहा है। जितने ग्राउंड स्टेशन है वो सब इसकी टेलीमेट्री ले रहे हैं और इसको चेक कर रहे हैं। सैटेलाइट के अंदर भी कुछ चीजें पावर डाउन होती हैं, कुछ यूनिट पावर डाउन होते हैं। तो सैटेलाइट की टीम है वो उनको भी उनकी भी टेलीमेट्री लेती है, उनकी भी हेल्थ को मॉनिटर कर रही होती है, ताकि सेपरेशन के बाद हम इस बात को यकीनी बना सकें कि जब सैटेलाइट अपने ऑन पर होगा तो उसकी वो रिक्वायर्ड यूनिट है वो ऑन होंगे। या आप देख सकते हैं कि सेकंड स्टेज की ऐसा ऐसा अपनी बर्निंग को खत्म करने की तरफ है और सेकंड स्टेज के लिए वो होगा। थर्ड स्टेज की बारी है और थर्ड स्टेज ने अपना काम शुरू कर दिया और वो अल्लाह से दुआ करते हैं कि ये स्टेज भी अपनी मुकम्मल जो उसका मकसद है उसको पूरा करे और हमारा सैटेलाइट MM1 जो है वो अपने ऑर्बिट के अंदर पहुंच जाए। तो ये टोटल ड्यूरेशन जो है लिफ्ट ऑफ से लेकर सेपरेशन तक का ये तकरीबन 25 मिनट तक का है। तो जिसमें से अभी मेरा ख्याल है कुछ चंद मिनट गुजर गए हैं, तो अभी वो टाइम दिखाएंगे 25 मिनट से इंशाल्लाह 25 में या 26 मिनट में ऑपरेशन होती है। सैटेलाइट के कुछ यूनिट जैसे मैंने पहले बताया कि हम ग्राउंड पर ही ऑन करके देखते हैं, ताकि जैसे सेपरेट हो तो सैटेलाइट अपने फंक्शन खुद से जो इनबिल्ट डिजाइन है उनको परफॉर्म करना शुरू कर। अब ये ऐसा है चाइनीज लैंड से बाहर निकल रहा है और इस समुद्र के ऊपर फ्लाई करना शुरू करेगा। ये नीचे आप देख सकते हैं ये वो ट्रैक है जिसके ऊपर ये सफर करता हुआ व्हीकल आ रहा है और यहाँ से ये इस पॉइंट से ये आखिरी स्टेशन है इनका, वहाँ से ये सी के अंदर चला जाएगा और फिर सी के अंदर इसकी मॉनिटरिंग के लिए कंट्रोल के लिए शिप्स जो हैं वो ऑलरेडी डिप्लॉयड है विद ऑल द नेसेसरी इक्विपमेंट जो कि इसको ट्रैक करते रहेंगे टिल सेपरेशन। सेपरेशन के बाद फिर सैटेलाइट जैसे जैसे ग्राउंड स्टेशन के ऊपर आएगा तो वहाँ पर ट्रैक होगा, उसकी फिर 24 आवर्स मॉनिटरिंग नहीं होती आफ्टर सेपरेशन, सैटेलाइट की मॉनिटरिंग नहीं होती। या उसने एक और बूस्ट दिया थर्ड स्टेज में। अब ये जो थर्ड स्टेज पे जैसे मैंने पहले बताया जो क्रायोजेनिक फ्यूल होता है तो इसके अंदर रीस्टार्ट भी कर सकते हैं, इसको शट डाउन करके इंजन को दोबारा भी स्टार्ट कर सकते हैं। ये सारी कैपेबिलिटीज होती है इस फ्यूल के अंदर। एक्सपेंसिव फ्यूल है और लेकिन इसकी एफिशिएंसी और कैपेबिलिटी आम केमिकल फ्यूल से बहुत अच्छी है, क्योंकि इसमें जो मेन पेलोड है यानी जो असल चीज़ है वो व्हीकल नहीं है, व्हीकल इज फॉर सैटेलाइट। तो इसलिए जिसमें आखिरी काम करना है वो हमें सबसे अच्छा फ्यूल जो है रॉकेट के अंदर रखा जाता है ताकि आखिरी जो रिएक्शन है सेपरेशन है सैटेलाइट की वो प्रॉपर हो सके। अब इस सीधी सेपरेशन अब चूंकि ये तो सिमुलेटेड है, यहाँ पर एक रिंग होता है, बेल्ट होती है जिसके साथ व्हीकल के साथ सैटेलाइट को अटैच किया होता है। उस बेल्ट के ऊपर भी पायरो एक्सप्लोसिव बोल्ट लगे होते हैं। जब सेपरेशन का टाइम आएगा तो ये पहली कमांड जाएगी अब सेपरेशन होनी है
तो वो फायर बोर्ड खुद ऑटोमेटिकली फायर होंगे और वो बेल्ट रिमूव होगा। बेल्ट रिमूव होगा तो सैटेलाइट बोल्टेड नहीं होता, सैटेलाइट व्हीकल के साथ बोल्टेड नहीं होता, क्योंकि अगर बोल्टेड हो तो बोर्ड को खोलने के लिए हम कुछ नहीं कर सकते। तो एक्सप्लोसिव बोर्ड्स होते हैं कट, जो कि जब फायर होता है तो उसको कट हो जाती है, उसके अंदर जो होल्डिंग मैकेनिज्म होता है वो कट हो जाता है, जिससे वो बेल्ट रिमूव होती है और सैटेलाइट आज़ाद हो जाता है और फिर व्हीकल उसको पुश देती है, जिससे सैटेलाइट अपने ऑर्बिट पर चल पड़ता है। और फिर एक और, अब क्योंकि जब ये सेपरेट होगा इसे, तो ये पार्ट जो कि थर्ड स्टेज है और व्हीकल, ये दोनों एक ही स्पीड में मूव कर रहे होंगे, तो इनके दरमियान फिर हमें थोड़ा सा डिस्टेंस लाना पड़ता है ताकि आपस में टकरा ना जाए थर्ड स्टेज और व्हीकल और सैटेलाइट। उसके लिए यहाँ पर इसकी अपर साइड पर लॉन्च थर्ड स्टेज की अपर साइड पर भी कुछ छोटे से इंजन लगे होते हैं, वो इसको ऑपोजिट डायरेक्शन में प्रेस देते हैं, जिसकी वजह से ये थर्ड स्टेज जो है ये पीछे की तरफ ट्रैवल शुरू कर देती है और सैटेलाइट जो है ना वो इसके पुश की वजह से आगे ट्रैवल करता है और फिर डिस्टेंस बढ़ना शुरू हो जाता है। अब हम देख सकते हैं 563 सेकंड जो है वो गुजर चुके हैं लॉन्च के बाद से। तो ये फेज थोड़ा सा लंबा है थर्ड स्टेज वाला, इसमें थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है, ये तकरीबन आई थिंक 2000 सेकंड के बाद जो है सेपरेशन होनी है। तो अभी तकरीबन टाइम थोड़ा सा ये थर्ड स्टेज के साथ अभी इससे आएगा टी के ऊपर अपने जो उसका पॉइंट ऑफ इंजेक्शन है उसकी तरफ ये मूव कर रहा है। ये नीचे रेड में जो वॉल्स नजर आ रही हैं, यहाँ पर मुख्य जगह के ऊपर शिफ्ट खड़े हैं बच्चे को ट्रैक करने के लिए। फर्स्ट स्टेज जो है वो पहला शट डाउन हो गया इसका, पहली दफा बंद करके अब थोड़ी देर, अभी ये रिमूव नहीं होगी स्टेज, अभी ये थोड़ी देर पोस्टिंग फेज में रहेगी, इसी तरह पोस्ट करेगी, उसके बाद इसको दोबारा पावर ऑन किया जाएगा इस स्टेज को और फिर ये एक मैन्यूवर करेगी और अब सैटेलाइट को, क्योंकि सैटेलाइट एक खास डायरेक्शन में इसे रिमूव करना है, तो अभी ये पोस्टिंग है, जिस मोमेंटम से ये आ रही थी अब ये उसी मोमेंटम से फिलहाल पोस्टिंग कर रही है। और इस वक्त इसका एल्टीट्यूड, जो फ्लाइट एल्टीट्यूड जो आ रहा है वो तकरीबन इस वक्त 200 किलोमीटर को क्रॉस कर चुका है हमारा व्हीकल और 300 से पहले ये उसको सेपरेट करेंगे। ये डिफरेंट फेजेस हैं, हर फेज क्रिटिकल है, बूस्टर का सेपरेट होना, फर्स्ट स्टेज का, सेकंड स्टेज का, थर्ड स्टेज का, इन सब का अपना अपना रोल है और ये सारे मिशन की कंप्लीशन के अंदर ये सारे अपना अपना पार्ट प्ले कर रहे हैं। और कोर्स जिन्होंने सारे मेहनत से इस सिस्टम को डिज़ाइन किया, इसको डेवलप किया और अब लॉन्च में पार्ट को सारे के सारे दाद के तारीफ के मुस्तहिक हैं, हमारे पाकिस्तानी भाई भी हैं और हमारे चाइनीज दोस्त भी हैं। ये हम देख सकते हैं कि इस वक्त इसका ग्राउंड से अब लिंक नहीं है, लॉन्च व्हीकल और सैटेलाइट का इस वक्त ग्राउंड से लिंक नहीं है, आपकी सैटेलाइट लिंक मौजूद है इस वक्त इसका, जो कि ऊपर हमें नजर आ रहा है। ये जैसे आगे जाएगा आगे लॉन्चिंग में इसका भी ग्राउंड लिंक जो है ना वो मुकम्मल होगा। अभी क्योंकि ये पावर ऑन नहीं है और पोस्टिंग फेज में है, इसलिए अब फिलहाल इसकी लिंक की जरूरत नहीं है और स्पेस लिंक है, ग्राउंड लिंक नहीं है। ये तो आप साथ साथ आप देख सकते हैं सैटेलाइट जो है वो ऐसा ऐसा अपनी मंजिल की तरफ रवाना है। ये सैटेलाइट जो है वो इस कायनात में कोई चीज़ साकिन नहीं है, हर चीज़ मूव कर रही है, हर चीज़ मूव कर रही है, ज़मीन भी मूव कर रही है, ज़मीन के अराउंड जितने प्लैनेट्स हैं सन भी मूव कर रहा है, सन के अराउंड जितने प्लैनेट्स हैं सब मूव कर रहे हैं, इस तरह अर्थ के अराउंड जितने सैटेलाइट्स हैं वो भी सब मूव कर रहे हैं। लेकिन इस खास सैटेलाइट को जब ये अपने ऑर्बिट में पहुंचेगा तो हम इसे कहते हैं जियो स्टेशनरी, स्टेशनरी ताकि रुका हुआ क्यों कहते हैं इसको? उसकी वजह ये है कि इसकी रिलेटिव मोशन विद रिस्पेक्ट टू अर्थ वो स्टेशनरी होती है, जिस स्पीड से अर्थ स्पिन करती है अपने और अपने नॉर्थ पोल के अबाउट, ये सैटेलाइट भी उसी स्पीड से अर्थ के अबाउट मूव करता है। यानी अगर मेरे सामने सैटेलाइट है
तो मैं अगर ऐसे मूव करूंगा तो सैटेलाइट भी उसी स्पीड से मेरे सामने मूव करता रहेगा। तो इसलिए इसकी रिलेटिव मोशन जो है विद रिस्पेक्ट टू अर्थ वो स्टेशनरी होती है, इसलिए हम इसको जियो स्टेशनरी सैटेलाइट कहते हैं। अदरवाइज अर्थ भी मूव कर रही है और ये भी मूव करता रहता है, और इसका फायदा हमें ये हासिल होता है कि ये सैटेलाइट एक ही पॉइंट पर है और मुस्तकिल जिस जमीन के हिस्से के ये सामने होगा वहाँ पर कंटिन्यूस 24/7 ये उस एरिया को देखता रहेगा, उस एरिया के ऊपर अपनी सर्विसेज देता रहेगा। अब जितने यहाँ पर हमारे ब्रॉडकास्टर दोस्त आए हुए हैं, इनको अगर तो ये सैटेलाइट हर वक्त नजर ना आए तो ये अपना जो डाटा है उसको लिंक नहीं कर सकते, उसको अपलोड नहीं कर सकते। तो इसलिए जियो स्पेशली सैटेलाइट एक बेस्ट सैटेलाइट है कि जिससे हम हर वक्त 24 घंटे दिन हो या रात हो हम उसको देख सकते हैं, उससे बात कर सकते हैं। लेकिन जो दूसरे छोटे सैटेलाइट लियो सैटेलाइट हैं जो कि जमीन के करीब के मदार में होते हैं 500 पे 600 पे 1000 वगैरह पर, और वो हर वक्त हमारे सामने नहीं रहते, वो आते हैं और गुजर जाते हैं, वो 5-10 मिनट 12 मिनट 15 मिनट इतना अर्सा हमारे सामने रहते हैं। लेकिन जियो स्पेशली सैटेलाइट इस 38 डिग्री ईस्ट पर हम इसको 38.2 डिग्री ईस्ट पर हम इसे लॉन्च करेंगे, इसको प्लेस करेंगे, और अगर हम इसको इसके रिवर्स किसी और पीछे वाली एरिया में ले जाए तो ये पाकिस्तान को देख नहीं सकेगा। अगर हम इसको दूसरे अमेरिका वाली साइड के ऊपर अगर लॉन्च करते तो वहाँ ये पाकिस्तान को उस एरिया को देख सकेगा जो इसके सामने है। तो इसलिए इसके लिए जो स्लॉट हमने सेलेक्ट की या जो स्लॉट हमें ITU से मिली वो स्लॉट है जहाँ से हम पाकिस्तान की कवरेज कर सकते हैं। तो ये भी सारी चीज़ें जो है जियो स्टेशनरी ऑर्बिट के अंदर डिफरेंट इनको स्लॉट्स कहा जाता है, और मुख्तलिफ स्लॉट्स के ऊपर मुख्तलिफ सैटेलाइट हैं। अल्हम्दुलिल्लाह MM1 की लॉन्च के बाद प्लेसमेंट के बाद हमारे 2 सैटेलाइट होंगे। एक सैटेलाइट पॉकेट 1R जो ऑलरेडी अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, हमारे दोस्त जो इस वक्त कैमरा लेकर फीड अपलिंग कर रहे हैं ये 1R की सर्विसेज यूज कर रहे हैं, और वो 1R 38 डिग्री ईस्ट के ऊपर प्लेस्ड है और वहाँ से अपनी सर्विसेज दे रहा है। और हम 2011 से नॉन स्टॉप दिन और रात, मैं भी सोता हूँ आप भी सोते हैं, हमारा सैटेलाइट भी सोता है, वो जागता रहता है और वो सर्विसेज देता रहता है। इसी तरह ये MM1 अपनी सेपरेशन के बाद जब ये मिशन ऑर्बिट में पहुंचेगा तो अपने भाई के बिल्कुल पास 38.2 डिग्री ईस्ट के ऊपर जाकर प्लेस होगा और वहाँ से ही अपनी सर्विसेज देगा। तो ये एक ऐसा सफर है जो कि खत्म नहीं होगा। एक सैटेलाइट उसके बाद दूसरा सैटेलाइट, जैसे इंसान की एक लाइफ है तो सैटेलाइट की भी एक लाइफ होती है। तो बाक्सट 1R 26 में रिटायर हो जाएगा एज पर पैरामीटर, उसकी लाइफ 15 साल की थी, 15 साल में ही अपनी लाइफ पूरी करेगा और MM1 इसकी सर्विसेज को कंटिन्यू करेगा। मीनवाइल एक तीसरे सैटेलाइट के ऊपर जो कि बाक्सट 1R की रिप्लेसमेंट होगी, बाक्सट 2, ऑलरेडी स्पार्को ने उसके ऊपर काम शुरू कर दिया है। उसके लिए विजिबिलिटी स्टडी जो है जो अभी आजकल हो रही है, कुछ अच्छा यूजर सेमिनार कॉन्फ्रेंसेज भी हुए, उसमें जो हमारे मीडिया के लोग थे वो शामिल हुए लाहौर में, इस्लामाबाद में, कराची में, और उनसे बातचीत हुई उनकी रिक्वायरमेंट के हवाले से। तो जिस तरह हमारी कंट्री की रिक्वायरमेंट्स होंगी उसके अकॉर्डिंगली वो सैटेलाइट डिज़ाइन होगा, उसको प्लेस किया जाएगा ऑर्बिट में और वो अपनी सर्विसेज देना शुरू करेगा। ये एक दूसरा स्पेस लिंक आपके सामने नजर आ रहा है, एक दूसरा स्पेस लिंक जो है वो एस्टैब्लिश हो गया है। अभी इसका सेकंड स्टार्ट जो है वो थर्ड स्टेज का होना बाकी है। ये कोस्टिंग फेज है, क्योंकि अब एक सवाल और ज़हन में आता है कि इस पाकिस्तान में तो जो दिन है, लेकिन रात चाइना में रात के 8 बज चुकी है, तो ये रात में क्यों लॉन्च किया है हमने? दिन में करना चाहिए था, दिन में नजर नहीं आता, रात में तो जल्दी से गायब हो जाता है। तो इसका जवाब ये है इस सवाल का कि एक्चुअली हमने इसको ईस्ट की तरफ लॉन्च करना है, हमने इसको, और चाइना हमसे ईस्ट में है और हमने इसको मजीद ईस्ट में लॉन्च करना है। और हमारी ये ख्वाहिश होती है कि जब सैटेलाइट व्हीकल से जुदा हो, जब सेपरेशन हो, तो सैटेलाइट को दिन मिले। हमारी खैर है हमें बेशक उस वक्त रात हो, लेकिन सैटेलाइट के लिए दिन हो ताकि वो सूरज से रोशनी लेकर अपनी तवानाई पैदा करके अपने अफाल का अंजाम दे सके। तो इसलिए इसको चाइना से रात में लॉन्च किया जाता है, और ईस्ट में चूँकि लॉन्च कर रहे हैं तो ईस्ट में दिन जल्दी आ जाएगा आगे, हमारे पास रात आ रही होगी और ये भाग रहा होगा दिन की तरफ। तो ये जैसे ही सेपरेट होगा इसके पास दिन होगा, हमारे पास रात होगी। तो इसलिए रात की सिलेक्शन होती है कि इसके पहले जो 8 घंटे हैं वो क्रिटिकल हैं। जैसे जब बच्चा पैदा होता है तो शुरू में बच्चा बहुत वीक होता है, उसको बहुत ज़्यादा निगरानी रखा जाता है। सिमिलरली जब सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल से सेपरेट होगा
اس سے پہلے یہ ہمارے ہاتھوں میں تھا، ہم اس کو دیکھ رہے تھے، ہم اس کی ساری چیزیں جو ہے وہ مانیٹر کر رہے تھے، اس کی ہر مانیٹرنگ کر رہے تھے. اب جب یہ سیٹلائٹ وہیکل سے سیپریٹ ہوگا تو اس میں یہ سارے فنکشن خود کرنے ہیں، وہاں پہ کوئی اس کے فنکشن کرنے کے لیے نہیں ہے. تو اس کے فنکشن پرفارم کرنے کے لیے جو سب سے امپورٹنٹ اور کریٹیکل چیز ہے وہ ہے پاور کی اویلیبلٹی، انرجی کی اویلیبلٹی. یعنی اس کا کھانا پینا جو ہے وہ سورج اور سورج کی روشنی اور دوا نہیں ہے. تو اس لیے جب یہ وہیکل سے سیپریٹ ہو تو اس وقت سن کی ایگزسٹنس یہ مینڈیٹری پیرامیٹر ہے. اس لیے چائنا سے اگر لانچ ہوگی جیو اسٹیشن سیٹلائٹ کی تو وہ رات کے وقت ہوگی. ہاں اگر آپ کسی اور ایک ویسٹرن ایریا میں چلے جائیں گے، یو کے والی سائڈ میں چلے جائیں گے تو وہاں سے دن میں بھی ہو سکتی ہے کیونکہ وہ آلریڈی ویسٹ میں ہے، وہاں دن ابھی آگے بہت آگے ہوتا ہے. لیکن یہ ایسٹرن سائڈ سے اگر لانچ ہوگی تو اس طرح ہوگا. تو یہ بھی پازیٹیو فیز میں ہے ہمارا سیٹلائٹ، اس میں کچھ ٹائم گزارے گا تو یہ بھی ہے. اب نیچے سارا اس وقت ہمیں سی کے اوپر سے ٹریول کر رہا ہے. اب سیٹلائٹ جو ہے وہ جب سیپریشن کے وقت 200 کلو میٹر سے اراؤنڈ 250-280 کلو میٹر کے اوپر یہ ایجیکٹ ہوگا اور وہاں سے ایجیکشن کے بعد یہ اپنا سفر جو ہے وہ شروع کرے گا، جو کہ میں نے پہلے جیسے بتایا جیو ٹرانسفر آربٹ اس کو کہتے ہیں. اس آربٹ میں یہ ٹریول کرے گا ٹوورڈز اس فارسٹ پوائنٹ دیٹ ول بی 35,000 اینڈ رفلی 900 کلو میٹر. اس پوائنٹ پر پہنچنے کے بعد پھر یہ اس کے سیٹلائٹ کے اندر جیسے ہم یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ لانچ وہیکل کے نیچے بھی یہ اس کو انجن کہتے ہیں. یہ بیسیکلی نوزلز ہوتی ہیں جن کو ہم سیٹلائٹ کی زبان میں یا وہیکل کی راکٹ کی زبان میں انجن کہتے ہیں. اسی طرح کے انجن سیٹلائٹ پہ بھی لگا ہوتا ہے. یہ تو بہت بڑا سیٹلائٹ کا انجن ہوتا ہے کیونکہ اس کو زیادہ تھرسٹ نہیں چاہیے ہوتا. اسی طرح کا ایک بڑا سا انجن یہاں پر بیک سائڈ پہ یہاں پر لگا ہوگا. جب سیٹلائٹ سیپریٹ ہو جائے گا تو اس کا یہ والا انجن جو ہے یہ ورک کرنا اسٹارٹ کرے گا اور سیٹلائٹ کو یہ اب شروع میں تو سیپریشن کے بعد تو یہ فری موو کرے گا اپنے آربٹ میں. جب یہ 36,000 کے الٹیٹیوڈ پہ پہنچ جائے گا وہاں سے پھر ہم اس کے انجن کو فائر کریں گے اور پھر یہ آہستہ آہستہ اپنی جو پیرسی ہوگی 200 سے اس کو ریز کرنا شروع کرے گا. یعنی اگر میں سینٹر آف ارتھ اس پوائنٹ کو لے لوں اور پیرسی یہاں پہ لوں جو کہ جو سیپریشن پوائنٹ ہے اور جو فارسٹ پوائنٹ ہے میں یہاں پہ رکھوں تو سیٹلائٹ جب یہاں سے موو کرتا ہوگا اس جگہ پر آئے گا تو یہاں سے اس کا انجن فائر ہوگا اور یہ آہستہ آہستہ اپنی اس پیرسی کو بڑھانا شروع کرے گا. ہر دفعہ جب سیٹلائٹ یہاں پہنچے گا ہم انجن فائر کریں گے، اس کو تھوڑا پش دیں گے اور یہ اپنی پیرسی کو ریز کرتے 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 5 منوورز میں 5 دفعہ کی برننگ کے بعد یہ 36,000 کا اس سرکل کو بیٹ کرے گا. سیکنڈ اسٹارٹ اپ تھرڈ اسٹیج کا سیکنڈ اسٹارٹ اپ ہم دیکھ سکتے ہیں برننگ سکسیزفلی الحمدللہ اسٹارٹ ہو چکی ہے اور وہیکل ہمارے M1 سیٹلائٹ کو لے کر اپنے آربٹ کی طرف جو ہے وہ روانہ ہوا ہے. جتنے بھی آن بورڈ پروگرامس بنے ہوئے ہوتے ہیں یہ سارے آن بورڈ بلڈ ہوتے ہیں اور وہیکل کے انٹیلیجنس ہوتی ہے کہ یہ جانتے ہیں کہ کس ٹائم پہ کون سا اکوپمنٹ آن کرنا ہے اور کس ٹائم پہ آف کرنا ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں گراؤنڈ سے تو کوئی لنک نہیں ہے لیکن جو آٹومیٹک پروگرامز ہیں جو کہ اندر رن ہو رہے ہوتے ہیں اتنے ٹائم کے بعد یہ پیرامیٹرز اگر ہوں گے تو اسٹیج جو ہے وہ شٹ ڈاؤن کر دینی اور اس کے بعد اس اسٹیج پر آ کے آپ اس کو آن کر دینا ہے. تو یہ تھرڈ اسٹیج کا سیکنڈ برڈ ہمارے سامنے ہے. اور اس وقت ہماری جو وہیکل ہے وہ ابھی 200 کلو میٹر سے کچھ اوپر ہے کیونکہ کوسٹنگ فیز تھی. کوسٹنگ فیز میں الٹیٹیوڈ نہیں بڑھا، اسی جس الٹیٹیوڈ پہ تھا اسی کے اوپر کوسٹ کر رہا تھا. اب یہ اس کی ہم نے برننگ اسٹارٹ کی ہے. اب یہ اپنے الٹیٹیوڈ کو آہستہ آہستہ مزید ریز کرے گا اور فائنل جو مشن الٹیٹیوڈ ہے اس کی طرف یہ موو کرے گا. اب آگے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ یہ گراؤنڈ لنک جو ہے ہمیں نظر آ رہا ہے. یہ شپ ہے جو کسی میں کھڑا ہے اور اس کے ساتھ آپ یہ گراؤنڈ لنک جو ہے یہ اسٹیبلش ہو گیا. اب جو گراؤنڈ سے آپریشن ہم نے کرنی ہے، جو مانیٹرنگ کرنی ہے، اب ہم یہاں پہ شپ ہے جو اس کی چیزوں کو مانیٹر کرے گا. اس شپ کی مدد سے ہم سیٹلائٹ کی جو ہیلتھ ہے اس کو بھی ڈیٹا لے سکتے ہیں. اس کا سیٹلائٹ بھی کمیونیکیٹ کر کے شپ کو اپنے بارے میں بتائے گا میرے کون سے یونٹس آپ جو آن ہونے تھے وہ آن ہیں اور اچھی ہیلتھ میں ہیں.
क्योंकि आप क्रिटिकल टाइम जो है वो सैटेलाइट का वो शुरू होने वाला है। और क्योंकि ऊपर स्पेस में एक पूरा नेटवर्क अवेलेबल है सैटेलाइट का, तो इसलिए वो हर वक्त जो स्पेस लिंक है वो हमारे सर्विस है, क्योंकि अब स्पेस के अंदर आपको मालूम है मुख्तलिफ कॉन्स्टलेशन बन चुकी है जो कि 24 आवर्स की कवरेज देती है। जैसे जो स्पेस बेस्ड नेविगेशन कॉन्स्टलेशन है वो भी हर वक्त आपको डाटा जो है वो आपको प्रोवाइड करती है। इसके अलावा और भी कॉन्स्टलेशन तो बनती जा रही है जो कि 24 आवर्स का रिक्वायर्ड डाटा जो है वो आपको प्रोवाइड करती है। तो ये पूरा बहुत बड़ा नेटवर्क है पूरे काम के लिए। जैसे अपनी सिंगल कंट्री सिर्फ एक जगह से नहीं हो सकता। आपके सामने हम देख सकते हैं चाइना के अंदर बेशुमार ग्राउंड स्टेशन लगे हुए थे, उसके बाद फिर शिप जो है वो उन्होंने डिप्लॉय किए हुए हैं। ये सारा एक पूरा सिस्टम है जो कि प्री प्लान किया जाता है इसको। अब इसका जो है साइकिल शटडाउन है, इसके बाद फाइनल स्टार्टअप होगा इसका। अब ये जो आखिरी जो सैटेलाइट के साथ इसके मनूवर होने हैं सेपरेशन के, उसके लिए अपने आप को प्रिपेयर कर रही है रॉकेट की थर्ड स्टेज। और ये तकरीबन 220 किलोमीटर तक के एल्टीट्यूड पर पहुंच चुका है हमारा। अभी आप देख सकते हैं कि ये अपने एल्टीट्यूड को एडजस्ट कर रहा है, क्योंकि आप इट्स गोइंग टू बी सेपरेटेड नियर वेरी नियर फ्यूचर। सैटेलाइट को जिस डायरेक्शन में रिमूव करना है उस डायरेक्शन में आप व्हीकल अपने आप को एडजस्ट कर रही है, ताकि जो पुश है उस पुश के हिसाब से सैटेलाइट ठीक ऑर्बिट में जाए। ये इंतहाई अब आपकी जो ऑपरेशन है वो हो रहे हैं लॉन्च व्हीकल और सैटेलाइट के। अब जैसे ही सेपरेशन हो जाएगी तो लॉन्च व्हीकल का सैटेलाइट से रास्ता जो है लिंक जो है वो खत्म हो जाएगा और सैटेलाइट जो है वो अपने ऑपरेशन को स्टार्ट करेगा। तो जैसे शुरू में स्टेट सेक्रेटरी उन्होंने बताया कि जैसे सैटेलाइट लॉन्च सेपरेट होगा तो सबसे पहले हम इसके सोलर पैनल इसके ऊपर लगे होते हैं। आप देख सकते हैं कि ये वो इंजन है जो कि सैटेलाइट का है। ये सैटेलाइट के ऑर्बिट को सर्कुलराइज करने के काम आएगा। और ये जो ब्लू कलर का शेड आपको नजर आ रहा है ये इसके पैनल है जो कि अभी हमने स्टॉक किए हुए हैं, सैटेलाइट के साथ बंद किए हुए हैं। इनको सैटेलाइट जब अनफोल्ड करेगा ये खुल जाएंगे और फिर ये सन से एनर्जी लेकर उसको ट्राई करना, एनर्जी को ट्राई करना, पावर जनरेट करना शुरू कर देंगे। ये इनके एंटीना हैं सैटेलाइट के। जब इस एंटेना को खोला जाएगा तो हम सैटेलाइट के साथ डेटा की कम्युनिकेशन कर सकेंगे। इसके अलावा छोटे एंटीना सैटेलाइट के सरफेस पे लगे होते हैं, यहाँ पर लगे होंगे, इनसे हम किसी भी वक्त कम्युनिकेट कर सकते हैं। ये ड्यूरिंग लॉन्च की हम इनसे कम्युनिकेट कर रहे थे और बाद में भी करते रहेंगे। ये वाले जो एंटीना हैं ये सर्विस प्रोवाइड करने के लिए हैं। ये जब मिशन ऑर्बिट में पहुंचेगा तो तब सर्विसेज प्रोवाइड करेगा। तो अभी जो आखिरी का क्रिटिकल ऑपरेशन है जो कि सैटेलाइट का पहला ऑपरेशन होगा वो उसकी पैनल की डिप्लॉयमेंट होगा। ये पैनल्स हैं, ये भी इसी तरह 4 या 5 पॉइंट से हमने एक्सप्लोसिव बोर्ड के साथ इनको सैटेलाइट की बॉडी से फिक्स किया होता है। और जैसे ही इसकी अंदर से कमांड आएगी डिप्लॉयमेंट की, ग्राउंड से कमांड जाएगी डिप्लॉयमेंट की, तो ये सारे बोर्ड से फायर होंगे और उस वक्त ये फिर पैनल खुल जाएंगे। वो शिप जो नीचे हमें उस वक्त नजर आ रहा था उस शिप को खड़े करने का पर्पज भी यही है कि सेपरेशन के वक्त सैटेलाइट की एग्जैक्ट जो स्टेटस है उसको मॉनिटर किया जा सके, क्योंकि उसके बाद फिर जब सैटेलाइट अपने ऑपरेशन करेगा तो जब भी इसके रिक्वायर्ड ग्राउंड स्टेशन पे मिलेगा तो वहाँ अपना डाटा पहुँचा देगा। क्योंकि अब ये सेपरेशन के जो पैरामीटर्स हैं